Hello friends, this is Veer from Saraswati Classes, Narod, Ahmedabad. Friends, as we know that tenses session is going on, tense का session चल रहा है, and before this one we have completed two tenses which are present tense and present continuous tense. Friends, in today's lecture we are over here with the third tense, that is present perfect tense. Now what do you mean by present perfect tense? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो कोई भी एक्ट जो है ना अभी इन शॉर्ट भाई अभी पूरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, श्वेता बाजार जा चुकी है। दिस इज ऑल व्हाट दोज ऑल एक्ट्स आर फिनिश्ड जस्ट राइट नाउ इन अ शॉर्ट while period of given time, right? So we are over here with the perfect definition regarding all these things. See what is given here, meaning when an act has been finished, जब कोई काम पूरा हो चुका हो उसको दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, राइट? हिंदी में बोले तो कौन कौन से वर्ड्स देखे जाएंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोया है। Now all these words, these are the hints or the keywords of to determine, to understand which tense is this. So here I have written only चुका है, चुकी है, चुके हैं, right? Okay friends, now the most important thing, accept that now these are the words which if your sentence comes in Hindi or Gujarati language, but suppose your sentence is given in properly in English, then how could you know, how could you come to understand that this tense is related with present perfect tense? Now I have some recognition for that. See, just now, ever, never, since, for, yet, still, till, etc. Now those are the words which indicates that this is a present perfect tense. Is that clear friends? Now come to the rules of which are the basic rules of present perfect tense. We have certain three rules as we have discussed in previous two lectures. Okay, the first one is affirmative sentences. Now affirmative sentence means positive sentences, and sometimes it is to be said assertive sentences. Okay, so what is the basic concept of this one? Again the same thing, it is converted, it is divided in two sections, active voice and passive voice. Now friends, you all know what is active voice and what is passive voice. I repeat once again, active voice means when an act is done by himself, means by the subject himself, and when subject makes other to complete any kind of task, then it is passive voice. For example, I am giving example, I have finished my work, मैंने मेरा काम कर लिया है। I have done means subject, who is subject? I am the subject, I am doing my work myself, then it is active voice. But suppose I made my servant to complete that task, मैंने मेरे नौकर से वो काम करवाया, तो ये एक्टिव नहीं हुआ, ये पैसिव हुआ, क्योंकि मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं काम करवाने वाला हूँ, तो काम करने वाला कौन है? माई सर्वेंट, राइट? दैट इज पैसिव वॉइस. So is it clear? I hope you clear it very well. Fine. So your first rule is in active voice, first of all subject, your helping verbs are has and have. This we have seen over here. Your helping verbs are always has and have. Now when your has is to be applied and when your has is to be applied, this can be seen over here in a singular subject. When your subject is singular. Now what do you mean by singular? Means related with one person only. It may be boy, it may be girl, it may be man, woman, anything else, remaining one related to one person or one thing. We are always having used has, and with plural it will be have. Now you everyone knows what is plural, है ना? Plural किसे कहेंगे? तो जो बहुवचन होगा, बहुवचन मतलब we, you, they all are plural. So with plural we always use have, and there is an exception is given over there, अपवाद. अपवाद क्या होता है कि अब पूरी दुनिया एक तरफ चल रही है और एक इंसान अलग चल रहा है उस दुनिया से हट करके, दैट इज एक्सेप्शन. सो आई ऐसे तो सिंगुलर होता है, लेकिन एज यू नो वी हैव रिटन ओवर हियर इज
एन एक्सेप्शन, एक अपवाद है, तो आई के साथ हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज करेंगे, जबकि हैव हम कहाँ यूज करते हैं, प्लूरल सेंटेंसेस के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, नाउ इट्स कम टू द फॉर्मेट और द रूल, subject plus has have plus V3. Now friends, one more thing is to be understand very much clearly. What is the thing is कि whenever you are going to do a sentence or making a sentence of present perfect tense, your active voice will have always V3, and also in passive voice there will be V3. So clear one thing very much in your mind, that when your sentence is given, you just have to see two things. First one, your helping verb. If you can't find the helping verb, you can't just the helping verb, you just see the verb form. If your verb form is in the third category, if you have given a third verb form, clearly indicates a perfect tense. It may be past perfect tense, it may be future perfect, but I just say, how could you understand that if the V3 is given, then it's a perfect tense, right? If present perfect tense or past perfect tense, that's a different matter. Present perfect tense में क्या होगा, has have plus V3 आएगा, past में वो had आ जाएगा, इतना आपको नॉलेज रखना जरूरी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, so V3 plus object as usual, others कहाँ रहेंगे, लास्ट में रहेंगे। Now next topic your पैसिव में जब जाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो पीछे है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आगे है वो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, और आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो हेल्पिंग वर्ब हैज है उसे क्या करेंगे, वहां पर प्रमोट करेंगे। ठीक है, प्लस एक नई चीज आ जाएगी, हैज हैव के साथ जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो V3 का यूज करने से पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बीन, BEEN, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या करना पड़ेगा, अपने को यूज करने का आएगा। सो हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 और लास्टली बाय, एंड जो सब्जेक्ट आगे था वो कहाँ चला गया, पीछे, एज यूजुअल। अदर्स जो है वो हमेशा कहाँ रखेंगे, लास्ट में। योर रूल नंबर सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। नाउ दिस ऑल रूल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। सो इन अफर्मेटिव वी यूज सिंपल वर्ड्स, in negative there will be one word added only, that is not, otherwise the full rule will be same. Subject has have, and after using have has we have to use not. We, so for example, subject plus has have plus not plus V3 plus object and lastly others. जब हम पैसिव में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट पीछे से आगे आ जाएगा, हैज हैव, और हैज हैव के बाद बीन लगाना है, लेकिन अब नॉट आया हुआ है। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब भी हम पैसिव वॉइस में जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और नेगेटिव फॉर्म दिया गया होगा तो उस नेगेटिव फॉर्म को पहले हम नॉट लिखेंगे, आफ्टर दैट वी यूज बीन, राइट? सो हियर इट इज ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B3 plus Y plus subject and others, everything will be same. Now see one thing, आपके एक्टिव वॉइस में V3 है और आपके पैसिव वॉइस में क्या है, V3 है, दोनों जगह आपको V3 का ही यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ इट्स लास्ट रूल, रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थ वाक्य जो होते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, एज यूजुअल जो हमारी सेंटेंस की जो हमारा वर्ब है और जो टेंस है उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, सवाल के सबसे आगे वाले भाग में, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट आगे हम क्या यूज करेंगे, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। और हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे क्या है, हैज एंड हैव, सो वो आगे आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन हैज, योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन इट विल बी हैव, प्लस V3, V3 मींस क्रिया की तीसरी अवस्था, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस others. Now what to do, जब हम पैसिव में जाएंगे तो अगेन द सेम थिंग इज टू बी डन कि जो हैज है वहीं से स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट सबसे पीछे है उसे आगे ले आएंगे, तो हैज है के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और आफ्टर देन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज यूजुअल प्लस अदर्स लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, so this is all about your rules. Now we have certain examples related with present perfect tense. They are in front of you, you can see what is given. There are some sentences in Hindi. Ram khana kha chuka hai, who had eaten their meal, किसने खाना खाया है, राम ने। So what you have done, Ram, the Ram, we are in present perfect tense. How could we understand from that? चुका है प्रेजेंट टेंस, चुके हैं प्रेजेंट टेंस, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, देखा है,
ठीक है। तो ये सब चीजें क्या दिखा रही है आपको, क्या सिंबॉलिक जो सिंबॉलिक वैल्यूज हैं वो क्या आपको इशारा कर रही है किस तरफ हमें देखना है। इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कीवर्ड्स हैं ये, इन कीवर्ड्स को पकड़ के चलेंगे तो इट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड व्हिच काइंड ऑफ सेंटेंस इज गिवन ओवर हियर, राइट। ओके, सो राम खाना खा चुका है, तो राम मतलब सब्जेक्ट, खाना खाना मतलब फूड बोल सकते हैं, मील बोल सकते हैं, खा चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब राम सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, राम के तुरंत बाद हैज टेकन, टेकन मतलब लेना। अब यहाँ पे टेकन के अंदर कोई बोले कि सर यहाँ पर हम ईटर लगाएं, सो डजंट मैटर। राम हैज ईटेन, किसका भोजन खा चुका है, उसका, उसका मतलब हिज मील। अब मील के अगर आप फूड भी यूज करोगे तो डजंट मैटर, बट मील इज अ क्वाइट सुटेबल वर्ड हियर। वे लोग अपना काम कर चुके हैं, वे लोग मतलब दे पीपल, राइट। सो दे पीपल ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, काम कर चुके हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, बहुवचन है, प्लूरल सेंटेंस, व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो दे पीपल हैव, चुके हैं, पूरा कर चुके हैं मतलब फिनिश्ड, क्या कर चुके हैं, उनका काम, तो देयर। लास्टली काम मतलब घर का मतलब होम वर्क, एसडब्ल्यू, फाइन। क्या सीता ने राम को खो दिया है, अब इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वही आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा स्टार्टिंग में। सो योर हेल्पिंग वर्ब इज हैज एंड हैव। नाउ सीता इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, व्हाट आर सब्जेक्ट ओवर हियर, और सब्जेक्ट के जस्ट पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसके हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। तो सीता इज अ सिंगुलर, सो विल यूज हैज। तो हैज सीता, खो देना, V3 यूज करना है, सो लॉस्ट है, तो लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, तो हैज सीता लॉस्ट, किसको खो दिया है, राम को, सो राम। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, सो अगेन तुम आया, तुम मतलब यू, यू मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब है, सो हैव यू, कभी, कभी मतलब एवर, हैव यू एवर, देखना मतलब सी, ठीक है, यहाँ तो V3 लगाना है, तो हैव यू एवर सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द ताजमहल। खाली ताजमहल लगाने के लिए आप क्या लगा सकते हो, द ताजमहल, क्यों, क्योंकि ताजमहल एक बहुत बड़ा नाम है। सो जब हम किसी बड़े नाम के वर्ड का यूज, बड़े नाम का यूज करते हैं, तो अगेंस्ट विच वी हैव टू यूज द वर्ड, फॉर एग्जांपल द हिमालय, द गंगा, द गीता, है ना। तो ये सब चीजें कैसी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं उन सब नाम के आगे हम द वर्ड का यूज क्या करेंगे, आर्टिकल के रूप में यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आपको उसको रिपीट करना है, पढ़ना है, और इसी से रिलेटेड आप क्या करने हैं, 5-5, 6-6 वाक्य बनाने हैं, और फिर मुझे उसको दिखाने हैं कि हैव यू डन इट प्रॉपर्ली और नॉट, ठीक है। मैं उसमें रेक्टिफिकेशन कर दूंगा इफ देयर इज एनी मिस्टेक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, साथ ही साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय, बी होम, बी सेफ।